پوری تاریخ میں بیشتر ثقافتوں نے جنگ کو مردوں کا زیور سمجھا ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو خواتین کی کہانیاں ملیں گی جو اپنی بہادری اور جرات کے لیے کھڑی ہوئیں اور وہی کیا جسے وہ صحیح مانتی تھیں۔ وومن ان واریر خواتین کا ایک ایسا سلسلہ ہے جنہوں نے اپنی تقدیر خود بنائی۔ حال ہی میں خواتین نے بڑے پیمانے پر جدید لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ اس کی جدید مثال سوویت یونین ہے، جس میں پہلی جنگ عظیم کے دوران خواتین بٹالین اور پائلٹ شامل تھے، اور دوسری جنگ عظیم میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین فوجی لڑے۔ اہم قدیم تہذیبوں میں عام طور پر خواتین کی زندگی زیادہ روایتی کردار تک محدود تھی، پھر بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے گھر میں اور میدان جنگ میں روایت کو توڑ دیا۔ یہاں تاریخ کے چند انتہائی ماہر خواتین جنگجو ہیں جن کو نہ صرف اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ مردوں کی طرح سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ فو ہاؤ کا ذکر تقریباً 1200 قبل مسیح کا ہے۔ وہ قدیم چین کے شانگ خاندان کے شہنشاہ ووڈنگ کی 60 بیویوں میں سے ایک تھی۔ اس نے ایک اعلیٰ اور قابل فوجی جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے کر روایت کو توڑ دیا۔ اس دور میں ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا اور ان ہڈیوں کے مضامین کو اوریکل کہا جاتا تھا۔ اوریکل کے مطابق فو ہاؤ نے بہت سی فوجی مہمات کی قیادت کی، 13,000 فوجیوں کو کمانڈ کیا۔ اس نے شانگ خاندان کے دشمنوں اور پڑوسیوں کو واضح کیا۔ ان میں ایک بہت پرانا دشمن تو فینگ تھے جس نے نسلوں تک شینگ کے خلاف جنگ لڑی، یہاں تک کہ وہ ایک ہی معرکے میں فو ہاؤ کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ قدیم چینی تاریخ میں فو ہاؤ کو ایک بہت گھات لگانے والی جنرل کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کی سب سے طاقتور شینگ جنرل تھی۔ 1976 میں اس کا مقبرہ چین میں دریافت ہوا۔ کھدائی میں نکالی گئی دولت میں کئی طرح کے برتن تھے اور کئی جگہوں پر 2 حروف لکھے ہوئے تھے فو ہاؤ۔ اس کی قبر میں پائے جانے والے بہت سے ہتھیار فو ہاؤ کی ایک عظیم فوجی طاقت کی حیثیت کی حمایت کرتے ہیں۔ اوریکل ہڈیوں نے بھی اس دور میں کم از کم 600 خواتین کی فوج میں حصہ لینے کے ریکارڈ کا انکشاف کیا ہے۔ ٹومیس کا ذکر 530 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ ٹومیس میساجوسٹس کی ملکہ تھی، جو کہ آج نیو انگلینڈ کی ایک پاپولر اسٹیٹ ہے۔ وہ ایک انتقامی جنگ کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس نے فارس کے بادشاہ سائرس عظیم کے خلاف جنگ کی تھی۔ ابتدائی جنگ میں ٹومیس یعنی کہ میساجوسٹس کا بہت نقصان ہوا۔ سائرس نے ان کا بہت کچھ تباہ کر دیا۔ اس شرمندگی کو ٹومیس کا بیٹا برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ غم زدہ ٹومیس نے ایک اور فوج کھڑی کی اور سائرس کو دوسری بار جنگ کے لیے چیلنج کیا۔ سائرس کا خیال تھا کہ وہ ایک یقیناً فتح جنگ ہے، لیکن ٹومیس نے اس کا خواب چکنا چور کر دیا اور سائرس کو بری شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد ٹومیس نے سائرس کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب سائرس کی لاش ملی تو اس نے لاش کی کھال اتار دی اور اس کا سر بھی کاٹ دیا۔ اس نے سائرس کو اس کے اپنے خون میں ڈبو دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو دھوکے سے ہرایا، لیکن میں نے تم کو مقابلہ کر کے مارا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے بہت ساری لڑائیاں جیتیں اور اپنے وقت کے بہت سارے طاقتور مردوں کو بھی شکست دی۔ آرٹیمیسیا ون آف کیریا۔ آرٹیمیسیا کا ذکر 480 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ وہ فارس کے بادشاہ زراکسس اول کی حلیف تھی اور یونان پر دوسرے فارسی حملے کے دوران اس نے سلامی کی لڑائی میں ذاتی طور پر 5 جہازوں کی کمان سنبھالی اور وہ لڑی۔ وہ بے رحمی حکمت عملی کے باوجود فیصلہ کن اور ذہین تھی۔ زراکسس نے اپنے بیڑے میں موجود تمام دیگر افسران سے بڑھ کر آرٹیمیسا کی تعریف کی اور جنگ میں اس کی کارکردگی کا بدلہ دیا۔ جب زراکسس یونان کے خلاف جنگ میں گیا تو اپنے کمانڈروں میں آرٹیمیسا وہ واحد خاتون تھی جو جنگ میں بھیجے گئے 70 جہازوں میں سے 5 لے کر آئیں، اور وہ 5 جہاز ایسی قوتیں تھیں جو دہشت اور بہادری کی ساکھ تھیں۔ جنگ کے دوران جب آرٹیمیسا کو پتہ چلا کہ دشمن کا جہاز اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کا بچنا ناممکن ہے، تو اس نے اپنے دوستانہ جہاز پر حملہ کیا اور اس کو ڈبو دیا۔
दुश्मन समझा कि ये या तो यूनानी जहाज़ है या फिर कोई और है। वो आर्टेमिसा का जहाज़ छोड़कर दूसरों का पीछा करने चले गए। अगर यूनान के कमांडर को अंदाज़ा होता कि वो आर्टेमिसा का पीछा कर रहा है तो वो कतई तौर पर ना पलटता, क्योंकि यूनान के बादशाह ने आर्टेमिसा के सर पर निहायत कीमती इनाम रखा था। ज़राक्सस ने उसकी जुर्रतमंदाना इक़दाम की बहुत तारीफ़ की और कहा कि मेरे मर्द औरत बन गए हैं और औरतें मर्द। मौरखीन का कहना है कि आर्टेमिसा को किसी नौजवान से मोहब्बत में नाकामी हुई और इस गैर मनकूला जज्बे का इलाज करने के लिए उसने एक चट्टान से छलांग लगाई और मर गई। ओलंपस एंड यूरैडस। ओलंपस एंड यूरैडस का जिक्र 356 कबल मसीह में मिलता है। सिकंदर आज़म की वालदा ओलंपस कदीम दौर की काबिल ज़िक्र ख़वातीन में से एक थी। वो एक ताकतवर कबीले की राजकुमारी थी। जब उसके शौहर फिलिप ने दूसरी शादी यूरैडस से की तो उसकी फिक्रमंदी में और इजाफा हुआ कि कहीं उसके बेटे सिकंदर की जगह कोई और वारिस ना आ जाए। सिकंदर आज़म की मौत के बाद यूनान में जानशीनों की जब इब्तदाई जंग हुई तो उसमें वो अहम खिलाड़ी बन गई। उसने एक फ़ौज की रहनुमाई की और उसके मुकाबला में एक दूसरी मलका की फ़ौज थी। वो कोई और नहीं, यूरैडस थी। ये तसादम यूनानी तारीख में पहला तसादम था जब दोनों लश्करों की कमान ख़वातीन ने की थी, लेकिन जंग तलवार के तबादले से पहले ही ख़त्म हो गई। जैसे ही यूरैडस की फ़ौज ने अपने प्यारे सिकंदर आज़म की मां को उनका सामना करते देखा, वो ओलंपस की तरफ हो गए। ओलंपस ने यूरैडस को एक तलवार, एक नोज और कुछ जहर देकर भेजा। उसको हुक्म दिया कि वो जिस तरह से मरना चाहती है उसका इंतखाब कर ले। ओलंपस के नाम पर लानत भेजने के बाद यूरैडस ने जहर का इंतखाब किया और मर गई। इस बात का इम्कान है कि ओलंपस अपने शौहर फिलिप, यूरैडस और उसके नौज़ायदा बच्चों के बाद के कत्ल में मुलव्वस थी। इसे अक्सर ऐसी औरत के तौर पर पेश किया जाता है जो सिकंदर को तख्त पर बिठाने के लिए किसी चीज़ से बाज नहीं आई। यूनान में जो जानशीनों की जंग जारी थी, इन्हीं में से एक जानशीन कासिनेडर ने तख्त पर कब्जा कर लिया। कासिनेडर ने इसे मारने के लिए 200 फौजी इसके घर भेजे। तहम सिकंदर आज़म की वालदा के सामने आते ही इन कातिल फौजियों की नज़रें झुक गईं और उन्होंने इस काम को सरअंजाम नहीं दिया। लेकिन माजी में इसके जुल्म के मुतासरीन के किसी लवाहिकीन ने जल्द ही इसे कत्ल कर दिया। क्वीन च्योटा। मलका च्योटा का जिक्र 229 कबल मसीह में मिलता है। ये अलेरिया की मलका थी जो बहरा एड्रियाटिक के साहिल का इलाका है। एक बार रोम के सफारतकार तिजारत के खदशात दूर करने इसकी अदालत में आए तो उनके एक साथी ने मलका च्योटा पर चीखना शुरू कर दिया। इस शोर से मुश्तल च्योटा ने इस नौजवान सफारतकार का कत्ल कर दिया। इस वाक़या ने रोम और अलेरिया के माबैन पहली जंग का आगाज़ किया था। इस जंग में रोम फातिहाना तौर पर उभरा था और च्योटा को अपने वतन से जला वतन कर दिया गया था। बोडिका। बोडिका का जिक्र 60 से 21वें सन में मिलता है। बोडिका हैरत अंगेज नजर आने वाली एक बहुत लंबी खौफनाक औरत थी। सख्त आवाज़ और सुर्ख लंबे बाल थे। वो बरतानिया के एक कबीले की मलका थी। उसने बरतानिया में रोमी सल्तनत की अफवाज के खिलाफ बगावत की क़यादत की। इसके शोहर की मौत के बाद रोम के अफसरान और गुलामों ने इनके घर ज़मीनें लूट लीं। रोमन गवर्नर ने बोडिका को कोड़े मारे और रोमी फौजियों ने उसकी बेटियों के साथ असमत दरी की। बोडिका ने बागी कबाइल को इकट्ठा करके रोम के खिलाफ अपनी फौज बनाई और रोम के 3 बड़े शहर कोलचेस्टर, सेंट अल्बेरांथ और लंदन को तबाह कर दिया। उसने तूफान बर्पा कर दिया, शहरों को तोड़ डाला और जला डाला, मुजस्मों और कब्रों को भी मसख कर रख दिया। आखिरकार रोमन गवर्नर सोतोनियस जो फरार हो गया था, उसने बोडिका को चैलेंज करने का फैसला किया। उसने मावनीन की एक फौज को जमा किया और जंग में 80,000 बरतानवी मर्द, खवातीन और बच्चे मारे गए, जबकि रोमन के सिर्फ 400 अफराद हलाक और थोड़ी तादाद में जख्मी हुए। बोडिका जंग में नहीं मरी, बल्कि रोमियों के हाथों जिंदा रहने की बजाय जहर पीकर खुदकुशी कर ली। बरतानवी तारीख में बोडिका को उसकी हिम्मत की वजह से खास मकाम है। वो जंगजू मलका जिसने रोम की ताकत का मुकाबला किया, उसकी जुर्रात और हिम्मत के बदले 1902 में बरतानिया ने इसे
एजाज़ी तमगे से नवाजा। लेडी ट्रू का जिक्र 3वीं सदी में मिलता है। वो वियतनाम की एक जंगजू औरत थी जिसने अपने आबाई वतन को चीन से आज़ाद करवाया था। वो 3 फुट सीनों के साथ 9 फुट लंबी थी, जिसे जंग के दौरान अपनी पीठ के पीछे बांधती थी। वो आमतौर पर हाथी पर सवार होकर लड़ती थी और पीले रंग का लिबास पहनती थी। वो चीन की एक बड़ी फौज से 5 से 6 माह तक लड़ी। फौज की कमी और तन-तनहा लड़ाई की वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसने खुदकुशी कर ली। वियतनाम के जनूबी शहंशाह ने इसकी बहादुरी और वफादारी शख्सियत पर उसके नाम एक हैकल बनाने का हुक्म दिया, इसे बहादुरी के खिताब से नवाजा और इसके नाम से एक मंदिर भी तमीर करवाया, जो आज पेहान कम्योन सूबा में मौजूद है। वियतनामियों के लिए लेडी ट्रू आज भी बहुत अहम तारीखी शख्सियत है। टोमोगोजन का जिक्र 14वीं सदी में मिलता है। वो निहायत खूबसूरत होने के साथ साथ आला तीरबाज और तलवारबाज थी। जापान के शहंशाह योशिनाग उसकी जंगी महारत के कायल थे। हर महाज में उसको पहले कप्तान की हैसियत से भेजते थे। एक मुहिम में टोमोगोजन ने मोसई कबीले के सरबराह का सर कलम किया और अपने मालिक योशिनाग को पेश किया। 1184 को होने वाली एक लड़ाई में जब योशिनाग को शिकस्त हुई तो उसने टोमोगोजन को वहां से फरार होने को कहा, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ मरना चाहता था। अगर एक औरत के साथ मर गया तो उसकी शर्मिंदगी होगी। कुछ मौरखीन का कहना है कि टोमोगोजन वहां से फरार हो गई और तलवारबाजी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, और कुछ का ख्याल है कि उसने शादी कर ली और कई साल बाद जब उसके शौहर की मौत हो गई तो ख्याल किया जाता है कि टोमो नन बन गई। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें।